Sir, recording. Yeah, I've started it. Yeah, so physics test 5. Let me see the marks, okay? Who has scored the highest? So today we'll be discussing new topic, that is gravitation, okay? So we'll start it. Okay, let me first see the marks, huh? Physics test 5. Okay, physics test 5. The first one is Anshika, 92 out of 100. Second is Samiksha, 84 out of 100. And in third position, okay, third position, two students, Vedant and Shravani. So in third, Vedant and Shravani both are at same. Marks 82. Okay, so after these three, then next marks are 80. Aditya and Aditi, same marks, then Siley, then onwards. So like 70 plus marks above students, like 6-7 students are above 75 marks. That's good. These are top three, and I guess these marks are like quite good. बहुत ज़्यादा difference है यहाँ पर. So try to minimize that gap. Then ये okay, second and third. Okay, congratulations. काफ़ी अच्छा score था, मतलब more than expected था. I wasn't expecting 80 plus marks. I said 80 plus marks will be good. So these are really impressive. Okay, let's start then our topic. ग्रेविटेशन. ओके, सो ग्रेविटेशन यार मतलब बहुत ही वेल नोन टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में इसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ग्रेविटेशन को. तो ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से, एग्जैक्टली है क्या. सो हमें पता है ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है. ओके, सो बेसिकली हम ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करने वाले हैं. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सर ये नया लेसन ही चालू किया ना? नया लेसन है ग्रेविटेशनल. इट्स फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन. ये बड़ा टॉपिक है. हाँ, means usually all the topics of ninth it takes like 5 to 6 lectures. So इतना भी बड़ा नहीं है. It will take 5 lectures nearly. Gravitational force. Okay. कोई define बताए. Everyone knows like what is gravitation. You feel it on a daily basis, regular basis. So what is the definition? What you will say? What is gravitation force? कोई बताए definition type? Anyone? Sir, it's attractive force which is produced by all the bodies. Okay. Something else? That attracts two masses. Okay, something else. These are like basic properties. Why gravitation acts means how you will identify whether this Attraction will force of Earth. Sir, due to its mass. due to its mass. That's the key term. Due to its mass. Anything which will have a mass will have a gravitation force. That's the key point of defining a gravitation force. What is the key point? Mass. Mass. Okay. So the attraction force acting among several objects और कुछ भी बोल सकते हैं, और let's say acting between two objects, two or more objects, मतलब कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है. टू और मोर ऑब्जेक्ट्स due to virtue of their masses only. Okay, acting between two objects due to virtue of their masses only, of their masses.
ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया ग्रेविटेशन फोर्स का। अभी आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे फर्स्ट स्टडी किसने, मतलब फॉर्मूला किसने बताया? न्यूटन। न्यूटन ने। न्यूटन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने सुना है, यहाँ पर हम सुनेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। ओके, सो न्यूटन, GMM for R square. या सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो उन्होंने बताया कि जैसे हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है, तो उन्होंने बताया लेट्स से कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है कुछ m1, ओके, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से उसका मास है कुछ m2। M2. तो उन्होंने बताया कि यार ये जो दो मास है m1 m2 और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस गैप अगर हम रखें, सो लेट्स से यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस r है, सेपरेशन बोल सकते हैं। सो बेसिकली ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है दैट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल बी attraction force or gravitation, that attraction force is gravitation, attraction force of gravitation is proportional to the product of their masses, proportional to the product of their masses and inversely proportional. Okay, Inversely proportional to distance square. yeah, so inversely proportional to the square of separation, ओके, बिटवीन देम। तो ये सिचुएशन है, मतलब अगर इसे मैथमेटिकली बोले तो सिर्फ उन्होंने ये बताया दैट जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब सेपरेशन उनका जो है वो r है और उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेशंस को मिक्स करूं, सो आई कैन से दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 Upon R square. r स्क्वायर। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनल। अब हमें पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है कैपिटल G. Capital. यस, सो कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो इस कैपिटल G को देख लेते हैं। तो बाकी सारी चीजें वेल नोन है हमें, यहाँ पर बाकी सारे यूनिट सारी चीजें बहुत अच्छे से हमें पता है। इसकी बात करें, ये फोर्स है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन। Newton. ये डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस है तो तो मीटर में, मीटर, ये मासेस हैं kg में। जी। तो ये हो जाएगा केजी में। तो इसका मतलब जी क्या होगा? तो अगर मुझे यूनिट ऑफ जी चाहिए, यूनिट ऑफ जी चाहिए, तो यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ जी, तो ये सिचुएशन हो जाएगा कि फोर्स इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2, ये बोल सकता हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन. न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी केजी स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट। अच्छा, जी की वैल्यू बात करें, जी है क्या एग्जैक्टली? तो जी का नेम देखो, Constant. जी एग्जैक्टली क्या है? सो जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल टर्म का मतलब क्या है? क्यों इसमें यूनिवर्सल वर्ड यूज किया हुआ है? बिकॉज इट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, मतलब कहीं पे भी किसी मीडियम पे चले जाओ, जी बिल्कुल सेम रहता है किसी भी प्लेस पे, ठीक है। सो इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर। तो इसलिए वो टर्म क्या यूज किया हुआ है? यूनिवर्सल यूज किया हुआ है। तो मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, कहीं पे किसी यूनिवर्स में किसी भी स्टार पे चले जाओ, कहीं पे भी किसी भी मीडियम पे चले जाओ, जी की वैल्यू सेम कंसिडर है। सो जी की वैल्यू क्या है वो हमें याद रखनी है। इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट अभी हमने जस्ट देखा, इट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर
kg kg G square. square. तो ये जी का हमें जो है वैल्यू भी याद रखना है। तो मतलब काफी बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप देखो ये वैल्यू, ये 10⁻⁻11 है, ये वैल्यू बहुत छोटा कर देने वाली है ना फोर्स को, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा इस वैल्यू के मल्टीप्लाई से फोर्स। हाँ, लेकिन सर अर्थ का वगैरह मास हाँ, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए है कि छोटे मासेस के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव पावर में है ना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हम प्लानिटरी लेवल पर फील कर पाते हैं, मतलब जब प्लैनेट्स और स्टार्स के मास की बात करते हैं, तो जैसे अर्थ की मास करेंगे की बात करेंगे वो 10⁻25 की रेंज में है। तो जब हम बहुत ज़्यादा इससे बड़ी रेंज के मासेस के बारे में बात करेंगे तब हम ग्रेविटेशन फोर्स फील कर पाएंगे, अदरवाइज हम फील नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा दो चीजें यहाँ पर ध्यान देना है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखें डायरेक्शन कैसी है फोर्स की। तो डायरेक्शन तो पता ही है, अट्रैक्टिव नेचर है। सो नेचर इसका अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्शन बात करूं तो ये लेट से फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट हमने देखे, तो ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। तो बी क्या करेगा, पुल करेगा ए को, तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको इस तरह से लिखूंगा। मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ इस तरीके से लिखना रिलेटिव में जो हम लिखते थे। ये एरो क्या बताएगा, ये बताएगा कि फोर्स ऑन बी लग रहा है और कैसा, ए की वजह से। जैसे है। तो डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्टिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर एक का फोर्स इधर लग गया तो दूसरे का फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, सर ये टेंशन फोर्स के जैसा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पुलिंग नेचर का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं विद डायरेक्शन दिखाऊं आपको ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डायरेक्शन मतलब ऊपर क्या बना देंगे अपन, एरो, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूं, नहीं, क्योंकि माइनस करना होगा। डायरेक्शन उल्टा होगी। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, विद डायरेक्शन दोनों किस तरफ होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर आपको ये दिया है कि ए जो है बी पर 20 न्यूटन लगा रहा है, तो बी भी ए पे क्या लगा रहा होगा, 20 न्यूटन। मतलब अगर मैं ऐसी बात करूं कि लेट से अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और लेट से हम यहाँ पर हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम पर अर्थ लगा रही है 50 न्यूटन का फोर्स, तो हम भी अर्थ पे क्या लगा रहे हैं, 50 न्यूटन से पुल कर रहे हैं। बट 50 न्यूटन इतना कम होगा अर्थ के लिए, क्या अर्थ आगे चली आएगी क्या, नहीं, बट हम जरूर अर्थ के पास आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए 50 न्यूटन काफी ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों फोर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। इक्वल। अगर मैं लिखूं इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यस, तो ओनली मैग्नीट्यूड लिखूं मैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बोलूंगा एफ ए ड्यू टू बी और एफ बी ड्यू टू ए, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब लिख लेते हैं ताकि आप लोग ऐसे भूले नहीं। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसमें किसी को डाउट है क्या, मतलब सिखाया है ना यार ये वर्ड्स कैसे लिखते हैं। हाँ, ये होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ड्यू टू ए। ओके, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी किसको लेकर, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को लेके, कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला और फोर्स की जो डायरेक्शन होने वाली है वो किस टाइप में होने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो ये डायरेक्शन के बारे में हो गया और हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हो गया। अभी क्या हम फॉर्मूले वाइज चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। मतलब आपसे सर हमारे इस चैप्टर में हाईलाइट पॉइंट क्या है, क्या क्या स्टडी करेंगे? ओके, इस चैप्टर में पहले तो हमने जैसे बात की फोर्स की बात हम करेंगे, फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, मतलब जी का स्टडी करेंगे, देखेंगे कि जी किस तरीके से वैरी करने वाला है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, जी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि अर्थ की फील्ड कैसी है, ग्रेविटेशन फील्ड कैसी है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, ग्रेविटेशन फील्ड, अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशन फील्ड होता है। फिर हम बात करेंगे कि एनर्जी कैसी है अर्थ की, मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में बात करेंगे।
एनर्जीज के बाद में बात करेंगे हम सैटेलाइट की, कि मतलब डिफरेंट सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, उनका ग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। सैटेलाइट के बारे में लास्ट में बात करेंगे। केपलर्स लॉ, जैसे हमारे हाँ न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशन के लिए, वैसे केपलर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं उस टाइम के, क्योंकि इन्होंने कुछ कैलकुलेशन नहीं की, इन्होंने नियरली 12 ईयर्स ऑब्जर्वेशन के बाद सारे फॉर्मूले दिए थे अपने, कोई प्रूफ सर, नहीं। इनके भी 3 है ना? हाँ, 3 फॉर्मूलेज, 3 लॉज हैं केपलर के, वो हम आगे स्टडी करेंगे एकदम लास्ट में चैप्टर के। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ एकदम मॉडर्न एज का है ना, ये उनका सबसे लास्ट वाला वो है कि बाय द वे पढ़ाना है केपलर्स फर्स्ट, मतलब लॉज सबसे पहले चाहिए, बट मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, बिकॉज व्हेन यू विल नो द चैप्टर यू विल नो हिज इम्पोर्टेंस, कि उन्होंने विदाउट कैलकुलेशन कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन और कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स दिए हैं विदाउट हाँ दीज कैलकुलेशंस। ओके, तो ये हमारा फ्लो रहेगा, चैप्टर चार्ट फ्लो। ओके। यस ओके, तो फोर्सेस के बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, बेसिक एक्सेलरेशन। तो अभी हम यहाँ पर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन की बात हो गई, अब उनके एक्सेलरेशन की बात होगी। क्योंकि फोर्स लग रहा है तो मतलब उनका क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन। आना ही चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है m1 मास का और ये m2 मास का, और अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आपको पता है कि इन पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देंगे ना। तो मान लो ये किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, a1 से, और ये किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, a2 से। A2 ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इनका एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है एक्सेलरेशन तो बड़ा सिंपल है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स ओवर मास। मास। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? No तो sir. अगर मैं a1 का एक्सेलरेशन देखूंगा तो फोर्स तो दोनों का सेम ही है, फोर्स में कोई डाउट है क्या? नहीं, फोर्स दोनों का सेम है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। क्लियर? डिवाइड बाई, अभी हमें a1 का चाहिए तो क्या मास डिवाइड करेंगे हम, M1। M1 M1 और m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला देखने में लगेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। ओके, ओके देन सिचुएशन। सो a1 का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो आपको ऐसे दिखेगा, जी m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, रेट का GM1 है। ओके, सो a1 का एक्सेलरेशन हमने बात किया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसका खुद का एक्सेलरेशन खुद के मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये किसके मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट M2 के। के। हाँ opposite तो उसके. यहाँ से आपको फील आने लगेगी कि वाई एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो आप देखो कि एक्सेलरेशन फिक्स रहता है। तो क्या ये इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है क्या, इसका एक्सेलरेशन? नहीं नहीं। मास पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए आप देखते हो कि जो एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है वो फिक्स रहता है, मतलब फ्रीली ग्रेविटी वाले में। हाँ 9.8। ठीक है, तो जो भी है, तो ये रीजन आपको समझ आया क्यों? इसका कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल सी बात है कि उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसमें से उसका मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू बचने वाली है वो उसमें सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ही आने वाला है। ठीक है, तो अभी आगे मैं प्रूव करूंगा, अभी मैंने अर्थ को एग्जांपल नहीं लिया है, वो आगे हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। अभी के लिए ये सिंपल हमें दिखा कि a1 का एक्सेलरेशन चाहिए तो मास हमें यूज होगा फॉर्मूले में m2 का।
A2 की बात कर लेते हैं तो सेम है भाई, G, सिर्फ M1 आएगा। हाँ M1 M2 बाई आर स्क्वायर, और इस बार M2 का डिवाइड करेंगे तो M2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो है M1 वाला बचेगा। तो A2 हो गया G M1 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये अभी कोई टफ बात नहीं, ये तो आप लोग निकाल दोगे। मैं पूछूंगा अगर डिफरेंट डिफरेंट का एक्सेलरेशन कितना है, ये निकाल दोगे आप, ठीक। बट कभी कभी पूछा करता है व्हाट दिस ऑब्जेक्ट विल फील, कि ये किस स्पीड से फास्ट आ रहा है। तो याद आ रहा है कुछ, अगर हम फीलिंग की बात करते हैं, व्हाट दिस ऑब्जेक्ट विल फील मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, रिलेटिव। अगर ये 10 से जा रहा है और ये पर्सन 20 से आ रहा है, तो बताओ इस पर्सन को रिलेटिव कितना फील आएगा। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्या करेंगे रिलेटिव में, 30 प्लस करेंगे। 30 30 की फील आएगी। क्यों? क्योंकि 10 इसने खुद कवर कर लिया, वो तो ये देख ही नहीं रहा है, और 20 ये कवर कर रहा है, तो दोनों मिला के कितना कवर कर लेंगे, 30। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ये जरूर पूछ लेता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 when or 2 felt by or observed by 1. So acceleration of 2 observed by 1 मतलब A2 with respect to क्या 1। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ऐड करना है यार, मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड वाइज क्या करना है, A1 और A2 को ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो G बाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 टाइप का बचेगा। तो एट द एंड सिंपल मीनिंग ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर हमसे क्या पूछ रहा है, रिलेटिव पूछ रहा है। ओके, रिलेटिव में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके गुड, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हमने अब ये क्या क्या पढ़ लिया। सो सिचुएशन हमने देख ली, क्या क्या है यहाँ पर, फोर्स देख लिया हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स देख लिया, उस पर हमने बात कर ली कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, और फिर हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली, और एक्सेलरेशन में भी रिलेटिव एक्सेलरेशन। इतनी चीजें समझ आ गई सबको? हाँ। ओके यस। चले, अब देख लेते हैं थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो मतलब ऐसे टर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, properties of gravitation force, properties of force। देखें, सबसे पहले तो एक बहुत ही फेमस लाइन आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेगी, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा या नया लॉ नहीं है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है जहां पर कोई भी चीज 1 अपॉन उनके सेपरेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स में जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो सारे ही क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब भले ही दो चार्जेस के बीच में फोर्स हो, दो मैग्नेट के बीच में फोर्स हो, नॉर्थ साउथ दिखा दे, उन सब में क्या फॉलो होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। इसलिए ये थोड़ा सा फेमस टर्म है, इस टर्म से डरना नहीं है, सिंपल इसका मीनिंग है, इनवर्स मतलब 1 अपॉन में, और स्क्वायर मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट चीजें होती हैं, इसलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। फिर एक और फैंसी सा टर्म आपको सुनने को मिलता है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? मतलब दोनों साइड पे सेम ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, कंजर्वेटिव का थोड़ा सा मीनिंग अलग है। यहाँ पर बेसिकली कंजर्वेटिव का मतलब जो होता है, वो सब बात आपकी सही है, कांस्टेंट से है इसका कुछ रिलेशन कंजर्वेशन का मतलब। बट कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को ऊपर थ्रो किया,
क्लियर? तो बताओ ग्रेविटी क्या करेगा, आपकी एनर्जी लॉस कराएगा या गेन? लॉस। ठीक लॉस। है, तो ग्रेविटी जो है वो क्या कराएगी, लॉस। ग्रेविटी विल रिड्यूस द एनर्जी। एनर्जी। अच्छा, अभी सोचो, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव टाइप की चीज ही नहीं हुई, ये तो हमारा एनर्जी का लॉस करा रहा है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा और वापस रिटर्न आएगा तो फिर गेन करना गेन स्टार्ट करेगा। तो ग्रेविटी जो है वापस एनर्जी गेन होगी। अगेन गेन इन एनर्जी, गेन इन लॉस्ट एनर्जी। यही कंजर्वेटिव का मतलब है क्या, कि पहले लॉस हुआ और बाद में गेन हुआ, तो इस गेन टाइप है। को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है ये। अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे कि कुछ थोड़ा कम समझ आया, मतलब फीलिंग क्या है कंजर्वेटिव का, अभी और क्लियर पता चल जाएगा। देखिएगा, सपोज एक बॉक्स है और यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। अब मैं बॉक्स को आगे लेके जा रहा हूँ, बॉक्स को आगे मूव किया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर प्रोसेस में लॉस होगा, हाँ। हाँ। ठीक है, लॉस होगा फॉरवर्ड मोशन में, लॉस इन फॉरवर्ड मोशन। सो फॉरवर्ड मोशन में क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, अब सोचो आप उसे वापस लेके आ रहे हो, आप उसे वापस लेके आ रहे हो, तो अब जब ये वापस आएगा तो क्या गेन करने लगेगा क्या एनर्जी, या फिर भी लॉस ही करेगा, बताओ? सर सर जिस साइड से धक्का मार रहे वैसे ही उल्टा खींचा तो गेन करेगा लगता है। अरे नहीं, इधर सर से लॉस पहले करेगा। लॉस कहाँ पे हो रहा है, लॉस कहाँ पर हो रहा है, लॉस बताओ? और लॉस कहाँ पर हो रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लॉस करा रहा है, तो बेटा जब हाँ, आप इस तरफ घुमाने लगोगे तो फ्रिक्शन बदल जाएगा ना, इस तरफ होगा, अभी भी वो क्या कराएगा, लॉस ही लॉस कराएगा। इस तरह आएगा। तो इन बैकवर्ड मोशन भी फ्रिक्शन क्या कर लॉस कर रहा है। क्रिएट लॉस। करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ग्रेविटी इस तरह का था क्या, नहीं, ग्रेविटी बहुत ही अच्छी चीज थी, जब आपने ऊपर थ्रो किया लॉस करा रहा था, लेकिन जब उसे वापस नीचे आना था तो वापस उसने गेन गेन करा। करा रहा था। दिस नेचर इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, while this always loss nature is called non conservative। फीलिंग आया कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है? सर फिर कुछ कुछ हाँ। फोर्स ऐसे हमेशा गेन भी करवाते होंगे। हाँ, मैंने बताया ना, जो फोर्स ऐसे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं काफी सारे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स और ये सब, तो ये सारे फोर्सेस जो है कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जबकि कुछ फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन, मोस्टली रेजिस्टेंस टाइप के, ये सारे फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ओके, किसी को डाउट समझ आया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? नो। ओके, गुड। तो पहले हमारा था इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा था ये क्या होता है, ग्रेविटी, बहुत ही अच्छी चीज है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होती है नेचर में। सर फिजिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब? Equilibrium, that means when the object is either at rest, so this will be called equilibrium of rest, of or it is moving with a constant speed, हाँ, so this will be क्योंकि also सर called शायद से equilibrium। एक दो नेट बार फोर्स जीरो है आया ना। था। हाँ, ये काफी बार हमने बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एफ नेट क्या, जीरो। हाँ। ये मैंने कई बार बताया आपको, इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जीरो। तो तो एफ नेट हाँ। जीरो में दो चीज है, या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मूविंग है तो कंटिन्यूअस मूविंग रहेगा। हम्म। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये तो बहुत मतलब बेसिक है, हमें ये पता ही है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये वाली प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है। फिर दूसरी, जो अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ओनली डायरेक्शन अपोजिट होती है, हाँ, ठीक सेम है, इन मैग्नीट्यूड। या सो फोर्स एक्ट्स सेम इन both the objects, okay,
but in opposite direction. ओके इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया कि यार ये किस पे डिपेंड कर रही है। एफ डिपेंड कर रहा है GM1 M2 बाई R square. पे। तो यार अगर आर मैंने फिक्स करके रखा है, मासेस भी फिक्स करके रखे हो, मैं किसी दूसरे प्लेनेट में चला गया तो क्या जी बदलेगा क्या? नहीं. नहीं बदलेगा। नो इसका मतलब ये मैं इवन सेम सेटअप ले जाके किसी भी प्लेनेट में यूनिवर्स में कहीं पे भी चला जाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या जी पे? नहीं. नो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है ग्रेविटी, उस पे मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो नो इफेक्ट ऑफ मीडियम इन बिटवीन। देखिए मतलब क्या है यार, मीडियम का देखो सच में कोई इफेक्ट नहीं है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज आप ग्राउंड फ्लोर में हो, ठीक है, और आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया और आपने देखा कि ये 1 सेकंड में नीचे आ गया। अब आप रूफ टॉप पे जाओ और सेम चीज करो, क्या टाइम बदल जाता है क्या? नहीं। बट अर्थ, मान लो ये अर्थ है और इस ऑब्जेक्ट के बीच में तो बहुत सारे फ्लोर्स आ जाएंगे ना। हाँ, तो डिस्टेंस बढ़ क्या? जाएगा. हाँ नहीं, डिस्टेंस तो बढ़ेगा, उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता वो डिस्टेंस। हाँ. तो अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस लेट से सेम है, बट आप देखो कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इवन बीच में इतने सारे फ्लोर्स हैं। तो मतलब बीच में मीडियम कुछ भी आ जाए, समझ रहे पर्पस क्या है हमारा बताने का? मीडियम कुछ भी आ जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मीडियम का। जैसे यहाँ पे 10 फ्लोर्स आ जाएंगे ना अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, उनका फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्यों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से। नो इफेक्ट ऑफ मीडियम इन बिटवीन बिकॉज जी क्या है? कांस्टेंट ऑलवेज। तो जी बिकॉज कांस्टेंट है इसलिए जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि बहुत ही वीक फोर्स है। कब मतलब सिग्निफिकेंट होता है? जब मासेस आर वेरी हाई, so it is very weak Weak. force and it is significant when masses are huge. ओके, ह्यूज मतलब प्लानिटरी लेवल पे होना बड़े. चाहिए, सर इतना सिंपल नहीं। वीक फोर्स है बट इट इज अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ऑल्सो इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज थी, ये जो मैंने यहाँ पर 4 लिखाई है ये ऑल वेल नोन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी काफ़ी नोन प्रॉपर्टीज हैं, तो इन्हें तो याद रखना ही है। साथ में ये 2 प्रॉपर्टीज भी याद रखना है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है और कंजर्वेटिव नेचर में होता है। ओके, चले तो देखें, एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा हमें और क्लियर समझ में आए कि फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखें, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व करके रखें। आंसर वैसे चैट बॉक्स में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व करें, हम एक बार फिर देख के वापस कर देंगे। सो लेट्स सी। Okay.
तो ये क्वेश्चन देने का जस्ट पर्पज ये था कि सॉल्व करें और सॉल्व करके हम देखेंगे कि जो फोर्स है बहुत ही स्मॉल आता है। आपको ये दिखाना कि रियल लाइफ में एक छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ह्यूमन और इस तरीके के जो सिंपल है, जिनका 10⁻10 से कम है वेट, तो उन पे उतना सिग्निफिकेंटली देखने को नहीं मिलता ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि कितना छोटा वैल्यू कैलकुलेट होके आने वाला है, जस्ट फार्मूला यूज करें और सॉल्व कर दें। सर जी का वैल्यू ओके, जी का वैल्यू लिख देते हैं, याद रखना है भाई दबे 6.67 into 10 to the power minus 11. सर आंसर just solve कर लें, no need to answer, just solving a basic, it is just to show that how small is that force that we don't even feel it. So let's see that formula, F is equal to G m1 m2 by r square. So G we already know, 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 m2 is 16 to 70 divided by distance 10 centimeter है, we need to keep it in meter, so 0.10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 हो जाएगा का स्क्वायर। तो देखो ये 0.1 है, स्क्वायर करेंगे मतलब 10 टू द पावर -1 है, ऊपर 2 जीरोज और जाएंगे और 11 के साथ सॉल्व हो जाएंगे। मतलब देखें ये क्या होगा, ये होगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस these two zeros, so +2 प्लस इसे देखें 1/0.1 मतलब 1/10 आई कैन से, सो 1/10 मतलब ऊपर जाएंगे 10 स्क्वायर, +2 और आ जाएगा। तो देखो फाइनली फोर्स कितना ज्यादा कम दिख रहा है, समझ आया? हाँ तो बहुत ही सिंपल वे में ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। सर, मैंने क्या निकाला है, हाँ 8801.4 into 10 to the power minus 11. ओके, रुको इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करके कोई बताए कितना आ रहा है? सर वो आंसर आ रहा है 280 88014. आएगा ना, ये 6.67 into 6 into 7. 280 पॉइंट आगे, एक मिनट मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं किसी ने कराया इसका, ठीक है कोई नहीं। 280.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, यहाँ पे देखें 4 जीरोज हट जाएंगे, 10 टू दी पावर -7, मतलब देख रहे हो फॉर्मूला अगर देखें तो F इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो इट विल बी 2.8, अभी ये 2 जीरोज और कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 10 टू दी पावर -5। फिर भी देखो कितना ज़्यादा कम है अमाउंट, तो इसलिए वो दोनों फील ही नहीं कर सकते हैं कि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास डाउट है किसी को, एकदम ओके समझ आ ही जाएगा। डन। अच्छा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अर्थ है, इसका मास है m, एक प्लैनेट है, डिफरेंट प्लैनेट नहीं मान लेते, एक कॉमेट टाइप पे है कुछ, वो लेट्स से उसका मास है इसका ट्रिपल, एक डेंस कॉमेट है, उसका मास इससे कितना है 3 टाइम्स है, हाँ ठीक है। तो अब आपको बताना है what it is coming towards the gravity of earth, this comet is coming towards the gravity of earth। तो सिचुएशन क्या होगी, फाइंड the acceleration of comet seen from earth when it was
at 4 और d is equal to 4 times of radius of earth। तो बेसिकली ये किस इंस्टेंट पे बताना है, when this distance, this is what, d, और d R है। equal to 4r, और ये r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो d is equal to 4r गिवन है, वेयर r is रेडियस ऑफ अर्थ। चले तो जल्दी से इन टर्म्स में, m और r के टर्म्स में एक्सेलरेशन बताएं, एक्सेलरेशन ऑफ दैट कॉमेट। सॉल्व करके रख लें, आंसर बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए यार, एक्सेलरेशन चाहिए। बताओ कॉमेट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं क्या 2। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, फोर्स ओवर मास ऑफ 2। तो फोर्स तो हमें पता है g इंटू m1, अर्थ का मास है m, कॉमेट का मास है 3m, बीच की डिस्टेंस कितनी है d स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या है m2 मतलब कौन 3m है ना। तो 3m क्या होने वाला है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉमेट कितना आ जाएगा, gm ओवर d स्क्वायर। ओके, a1 कितना हो जाएगा, अर्थ का एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये कि ये कॉमेट इतना हैवी है, अर्थ के मास का भी ट्रिपल है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, अर्थ को पुल करने का ट्राई करेगा। तो एफ ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा m1, और g m1 में तो m है इंटू 3m है वो d स्क्वायर, और m1 मतलब अर्थ का मास मतलब m, तो m कैंसिल आउट हो गया, 3gm बाई डी स्क्वायर आएगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, a1 पूछा है या a2। सर A1 पूछा है। 1 a1 पूछा है, ढंग से देखो फिर। A2 नहीं, पूछा है। A2 पूछा है। a2 पूछा है Comment। या कुछ और चेंजेस करने हैं। हाँ सॉरी, वो कमेंट से ही पूछा है। Find the acceleration of comet seen from Earth। हाँ सर, अब D को सिर्फ 4R रख लेंगे तो D 4R स्क्वायर 16R स्क्वायर आएगा। सीन फ्रॉम अर्थ का मतलब है, सीन फ्रॉम अर्थ का मतलब है कि इसने क्या पूछ लिया, रिलेटिव। A2 विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछ लिया, A1 पूछ लिया। तो बताया था ना वैल्यू वाइज दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, g बाई डी स्क्वायर रहेगा ही, m और 3m ऐड हो जाएंगे। समझ आया, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा दिखेगा, 4g बाय डी स्क्वायर, 4gm बाय डी स्क्वायर। सर लेकिन D तो 4R है ना, तो ये अब हम d की वैल्यू रखेंगे 4r। अभी हाँ, तक तो हमने नहीं एक रखी। 4 कट होगा। हाँ, तो अभी तक हमने नहीं रखी क्योंकि हमें पहले से सॉल्व नहीं करना था, बाद में आराम से करना था। d की वैल्यू गिवन थी 4r का स्क्वायर, तो एक 4 कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा 1/4 ऑफ gm ओवर r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया जो अर्थ से हमें देखने वाला है। तो तीनों टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए, रिलेटिव का भी आपको समझ आया सबको। हाँ हाँ, तो सर, फिर इसमें आगे क्या होगा अगर ये ऐसे ही आता रहा तो। बेटा कोलाइड हो जाएंगे दोनों, अर्थ निपट जाएगी, मतलब मतलब ब्रेक हो जाएंगे दोनों। वो बहुत ज्यादा डेंस एक कॉमेट है ना, तो अर्थ को ब्रेक कर देगा, कोलिजन कोर्स, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, लगेगा हॉलीवुड मूवी चल रही है एक,
है ना। तो हाँ। वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, अभी आसपास कोई इतना कॉमेट नहीं है हमारे, इतना हाईली डेंस तभी पॉसिबल है, मतलब आयरन से भी ज्यादा डेंस कोर हो तब वैसा पॉसिबल होगा। हाँ। खैर छोड़ते हैं यार उसे। ग्रेविटेशन में अच्छा एक चीज है, ग्रेविटेशन में हमें टू द टॉपिक रहना है। ग्रेविटेशन में इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करना कि आप डिफरेंट गैलेक्सी में चले गए, सर उस गैलेक्सी में क्या होगा, इस गैलेक्सी में क्या होगा, अपने सोलर सिस्टम तक रहना है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते जाते हैं। सर हमें कॉमेट कहाँ मिलेगा देखने? बेटा कॉमेट कहाँ मिलेगा देखने को, यूट्यूब सर्च कर लो। या तो फिर बहुत अच्छा टेलीस्कोप हो, तो हाँ। मतलब अर्थ के बहुत पास नहीं, जब मतलब बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप, मतलब वो नॉर्मली आपको यहाँ के रेंज में नहीं मिलेगा। पता है कॉमेट देखना क्यों टफ है, बताओ कॉमेट देखना क्यों टफ है, कोई बता सकता है स्पीड। कैसे। स्पीड स्पीड नहीं, सर क्योंकि वो बर्न अप हो जाता है, वो आइस और डस्ट पार्टिकल अरे से नहीं बना होता यार, है। नहीं नहीं नहीं, वो है, समझो एग्जिस्ट कर रहा है, एक कॉमेट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको टेलीस्कोप से ढूंढ पाना थोड़ा सा टफ होता है, सर्च कर पाना। लाइट, ठीक है, उसकी खुद की तो लाइट है नहीं कोई, उसकी खुद की लाइट नहीं है, हाँ। तो किसी दूसरे सन या प्लेनेट से लाइट आएगा तब वो रिफ्लेक्ट करेगा और तब जाके वो हमें दिखने वाला है, ठीक है। तो सोचो हम लोग यहाँ हाँ। पर रात में देख रहे हैं अगर कॉमेट को इस तरफ, रात में मतलब सन इस तरफ है, हम लोग इस तरफ है, और इस तरफ के हम कॉमेट को किसी को ढूंढ रहे हैं, तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, हाँ, लाइट ठीक है। नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो डे टाइम पे ही कोई कॉमेट आप इस तरफ वाले देख सकते हो, और भी काफी सारी चीजें हैं, जब वो किसी उसमें क्या बोल रहे हैं एनर्जी निकल रही होगी अगर, मतलब जैसे अ, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो जो फ्रिक्शन की वजह से उसमें बर्न अप होता है, तो वो एनर्जी जब होगी तब लाइट मिलेगी, तब आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कॉमेट देखना थोड़ा सा टफ है, बट उससे बेटर है कि आप यूट्यूब फॉलो कर लें, उसमें आपको दिखा देगा पूरा एकदम एनिमेटेड, सारे कॉमेट सारा कुछ। हाँ। चलिए वापस आते हैं, कुछ फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। फाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी where A, B and C are having same mass. ओके, तो कुछ हमें यहाँ पर फोर्स के बारे में बताना है कि यार बी को कितना फोर्स फील होगा। ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी कहाँ पर रखे हुए हैं सर इस तरीके लेकिन से। न्यूटन ने तो सिर्फ 2 का ही फॉर्मूला दिया है। अरे दो का दिया है कि दो लोग हैं, तीसरा होगा तो वो उन दोनों पे फोर्स लगाएगा, बस म्यूचुअल नेचर है ना, ऑल पॉसिबल हाँ। पेयर ऑफ टू, तो 3। चाहे कितने भी हो, मतलब अरे आई एम टेलिंग कि लेट से 50 हैं, यू मेक ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ टू, वो सब लोग फोर्स लगा रहे होंगे उस फॉर्मूले से, ठीक है। बाकी हमने हाँ। डायरेक्शन पढ़ा है ना पीछे वाले चैप्टर में, कि अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कैसे नेट निकालते हैं, याद दिलाओ। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, नेट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर। कंपोनेंट करके। कंपोनेंट करके, वेरी गुड, कुछ समझ आया। इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट कर कंपोनेंट्स। लेंगे, तो ये वाले तो दो कंपोनेंट आराम से सॉल्व हो जाएंगे माइनस। सपोज ये फोर्स है 20, ये फोर्स है 5 नहीं थोड़ा मान लेते हैं 10 है, इसका कंपोनेंट आया 6, इसका कंपोनेंट आया 5, तो इन दोनों का सॉल्विंग कितना बचेगा 14 14। इस तरफ। सो आंसर आएगा इस तरफ 14, बट एक तो और भी फोर्स है ना ऊपर ऊपर जा रहा है। 5, तो अब बताओ ये दो 90 डिग्री पे हैं, आप कैसे निकालेंगे नेट फोर्स। सर स्क्वायर अंडर रूट करके। रूट करके। वेरी गुड यार, बढ़िया यार, तुम लोग तो एकदम स्मार्ट हो गए हो, बहुत जल्दी जल्दी समझ पा रहे हो क्या होगा। चलो बहुत अच्छा है, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोग सॉल्व कर लें। आंसर आप टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लोग टेक्स्ट नहीं करें, आंसर सॉल्व करके रखें, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये डिस्टेंस है लेट्स से एल, तो टेंशन ही नहीं है, वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और सबका मास क्या है एम।
डन। और ये एंगल है 45 डिग्री, मतलब कौन सा ट्रायंगल बन गया ये फिर? राइट एंगल। राइट एंगल तो है, आइसोसेल्स बन गया, 45 डिग्री है ना। हाँ, तो अगर ये लेंथ isosceles। बिना का है, आपको समझ जाना है कि ये भी कितनी होगी, एल। बट मैंने चलो बना दी, ठीक है। चलो अब सॉल्व सर करें। और वो हाइपोटेनियस? अरे बेटा यार, अब ये एल है, ये एल है, तो हाइपोटेनस तो फाइंड कर लोगे ना, वो भी निकाल के दे। हाँ, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस? बी टू सी की डिस्टेंस अगर चाहिए तो बी टू सी की डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी टू सी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एल रूट 2। चले सॉल्व करें जल्दी से, फाइनल आंसर हमें बताना है आपको। मतलब आप लोग सॉल्व करके रखो, फिर मैं आपको फाइनल सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको किस पे फोर्स बनाना है, बी पे। तो आप क्या करेंगे, बी को अच्छे से बनाएंगे ना, यहाँ पे बी को रखेंगे, ओके। ये बी है। अब बताओ इस पे दो फोर्सेस कहाँ कहाँ पर लग रहे होंगे। एक फोर्स सर एक सी लगाएगा 45 डिग्री और एक पे के लगेगा। लगाएगा। वेरी गुड। हाँ, एक तो ऐसे सिंपल वाला लगाएगा और एक ऐसे कितने एंगल पे, 45। 45। 45 डिग्री पे। बस इन दोनों का अब आपको रिजल्ट निकालना है। तो मुझे लगता है यू नो द प्रोसेस कि आपको कैसे निकालना होगा। अच्छा, दोनों के फोर्स का वैल्यू भी सेम होगा क्या, ये एफ बी ड्यू टू ए और ये क्या है, एफ बी ड्यू टू सी। दोनों का सॉल्व कर लेते हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इंटू एम अपॉन लेंथ कितनी है बी टू सी की, एल रूट 2 एल रूट 2 का स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पर। अच्छा, एफ बी ए क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला एफ बी ए, तो ये हो जाएगा जी एम, एम दोनों का मासेज एम है और बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फोर्स देखो क्या आएगा, ये आएगा जी एम स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर। ओके, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, जबकि ये सिंपल आएगा क्या, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो बताओ कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ए ज्यादा फोर्स लगा रहा है या सी ज्यादा फोर्स लगा रहा है। सर हाँ, ए ज्यादा लगा रहा है क्योंकि सी के डिनोमिनेटर में 2 है। 2 है, वेरी हाँ, गुड। तो मैं सिंपल वे पे यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ, एफ ए जो है, एफ ए सॉरी एफ बी ड्यू टू ए वो डबल है किससे, एफ बी ड्यू टू सी। ये भी आपसे पूछ लेता है, मैंने तो आपसे पूरा नेट फोर्स का क्वेश्चन पूछा, बट ऐसे भी पूछ लेता है हुज फोर्स इज हायर। तो किसका फोर्स ज्यादा है, ए वाले का। और देख के भी लग रहा है ना, ए वाला पास में है एल डिस्टेंस में, जबकि सी वाला कितनी डिस्टेंस में, एल रूट 2 में है। ओके, चलो अब नेट फोर्स निकालो यार। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, स्टेप बताएं, स्टेप बताएं। लेट से मैंने इस फोर्स को बोला है एक्स, या इस फोर्स को बोला है मैंने एफ। देखिएगा ये मैंने बोला है एफ, तो इस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा फिर, 2F दूंगा क्या, सही लिखा है या कुछ और हाँ लिखना चाहिए। अरे सोचो 2F होगा क्या ये, अरे नहीं। ये हाफ है, हाँ, तो क्या तो होगा फिर ये, एफ 2 बाई, ये एफ होगा। हाँ, ऐसे भी लिख और ये एफ सकते बाई 2 बाई 2। होगा। हैं। ठीक, सर नहीं तो ऊपर वाले को एफ रख देते हैं और नीचे वाले को 2 है। 2F, कोई बात नहीं, बट हम कंपोनेंट कर रहे हैं ना उसके, इसलिए हमने हाँ, ऐसा किया। बट कोई बात नहीं, आपको चाहिए तो एफ और 2F रख देते हैं, बट ऐसे बेटर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ क्या करेंगे अब, इस वाले 2F के क्या करेंगे, कंपोनेंट, एफ बाई 2 के क्या करेंगे, कॉम। कंपोनेंट। कंपोनेंट। तो थीटा कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा एफ बाई 2 इंटू साइन 45, और यहाँ पर क्या आएगा एफ कॉस बाई 2 इंटू कॉस 45 डिग्री। याद है सेम ही सबको, आएगा दोनों भी। 1 कंपोनेंट बाय रूट फॉर्मूला। 2। हाँ, तो अगर मैं अब यहाँ पे देखूंगा फोर्स, तो एक तो बचा है एफ, और कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आएगा एफ बाई 2 इंटू, बताओ कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। हाँ, अच्छा, एक फोर्स ये भी आएगा कितना, एफ बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 2, सेम ही। सेम ही आएगा। तो देखो कौन से दो फोर्स ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली, ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे ना डायरेक्टली,
तो ये दोनों फोर्स ऐड होंगे, सो F प्लस F बाई 1/√2। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है एक्चुअली, मुझे 45 डिग्री की जगह पे एंगल कुछ और रख देना चाहिए था ना, एंगल 37 रखते हैं तो फिर चीज़ें क्या होती, कंपोनेंट थोड़ा सा ऐड होने की पॉसिबिलिटी होती, बट कोई बात नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे अभी क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, F ऐड होगा और F 1/2√2 ऐड होगा। सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा है। हाँ सर, हाँ नहीं दिख सर, रहा आप है। क्या कहाँ पे पॉइंट करे वो भी नहीं दिख रहा। ओके वेट, ये लाइन ये ड्रॉ किया मैंने, ये दिख रहा है क्या? नहीं। नो सर, हाँ अभी 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 दिखा। दिखा। ओके ओके, लैग हो रहा है, जस्ट वेट एक मिनट, हाँ मुझे पॉज कर लेने दो, फिर से करने दो। अभी हाँ लाइन, हाँ अभी दिख रहा है सर। आपने पहले ओके टिक मार्क किया था। हाँ ओके चले। सो अभी क्या होगा कि ये दोनों लोग ऐड हो जाएंगे, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, ये फोर्स हमने ऐड कर दिए, ये फोर्सेस कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 1/2 मतलब 2√2, ठीक है। और ये हो गया हमारा F, और एक दूसरा 90 डिग्री पर कितना आ जाएगा, ओनली 1/2√2 F। हाँ अब ये दोनों 90 डिग्री में है, तो याद है ना इनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, रूट हाँ, स्क्वायर करके अंडर पूरा, में रूट में डालने का और उनका स्क्वायर हाँ करने का। उनको स्क्वायर करने का। तो मैं फाइनली रिजल्ट फोर्स अगर बात करूं, रिजल्ट फोर्स, तो वो रिजल्ट फोर्स कितना हो जाएगा, वो रिजल्ट फोर्स हो जाएगा हमारा रूट ऑफ ये 1 प्लस 1/2√2 जो है इसका स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा ट्रीट करेंगे। हाँ इसको a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा ट्रीट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस ये 1/2√2 है इसका स्क्वायर करेंगे। तो देख, लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गई? यस सर। हाँ तो पक्का इसका कुछ और भी जुगाड़ होता है, तो अब हम वो अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। ये समझ आया कि नहीं, करना क्या है, ये मेथड समझ आया? हाँ कॉम्पोनेंट बट करने हाँ, कंपोनेंट करके अपन सॉल्व करेंगे, बट ये मेथड थोड़ा सा टफ पड़ जाता है लेंदी। इसमें, जब हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करते हैं। वहां पे पता है क्यों इजी पड़ता था, क्योंकि वहां पे वर्टिकल में तो वो जा ही नहीं रहा होता, तो वर्टिकल की टेंशन ही नहीं रहती है, वो नॉर्मल कैलकुलेट करने में काम आता है, सिर्फ ये फोर्स चाहिए होता है, तो इसलिए लॉज ऑफ मोशन में इजी था। बट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ पड़ता है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड। और ये आपको सीखना पड़ेगा, पता है ये क्लास 12th तक काम आ जाएगा आपको, ये अल्टरनेट मेथड आपको क्लास 12th तक काम आ जाएगा। क्या, जब भी कोई दो फोर्स हैं F1 और F2, और वो दो फोर्स किसी थीटा एंगल पर हैं, तो पता है नेट फोर्स का फॉर्मूला आप याद कर लो। नेट फोर्स का फॉर्मूला एकदम बिल्कुल बहुत सिंपल सा दिखेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा। कैसा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है दो फोर्सेस के बीच का, अगर हमें स्ट्रेट है तो निकालने का। अब देखना, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो वेरीफाई नंबर 1, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, बताओ तब देखें नेट का फॉर्मूला क्या आएगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब F1 F2 किधर है, सामने ही है, इधर ही F1 है और तो cos थीटा का वैल्यू भी उधर 1 F2 होगा। है, उधर भी F2 है। तो हमें तो ये रियल में डायरेक्ट पता है ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं तो बस सब डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो चेक करें इस फॉर्मूले से भी वही आ रहा है या नहीं, तो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। 0 हो जाएगा। 0 मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 की 1। होती है, 1 होती है। तो देखो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्चुअली में किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, और कॉस थीटा क्या हो गया, 1। तो देखो ये F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बन गया ना, और नीचे रूट लगा है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल। देख रहे हो नेट का फॉर्मूला सीधा वाला आ गया, क्या आ गया, F1 प्लस, F1 प्लस F2। ठीक है। अच्छा, आपको फिर ये भी याद है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो cos थीटा तो 0 होगा। हाँ तब हम कैसे फॉर्मूला निकाला करते थे, बताओ डायरेक्टली। अगर F1 F2
90 डिग्री है, तो हम बिना फॉर्मूले के कैसे निकाला करते थे? रूट F1 √f1 + f2। अच्छा, अब फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। अगर cos थीटा 0 है, मतलब सॉरी cos 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हमें पता है 0 होता है। तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगा ना पूरा। आंसर देखो यही बचा ना। तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ वेरिफिकेशन कि सच में ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है आपके सॉल्विंग के लिए। डन। किसी को कोई डाउट इसमें? ये No. वेरिफिकेशन और ये फॉर्मूला याद रहेगा? तो बताओ, अभी हमें यहाँ पर कितना सारा स्क्वायर करते और बहुत सारा टाइम लगा, देख रहे हो टाइम। अब देखना तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? अल्टरनेट मेथड है ना, ये अल्टरनेट मेथड, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये अल्टरनेट मेथड है। अब इससे सॉल्विंग देख लेते हैं कि सॉल्व क्या होगा। देखें आंसर, दो फोर्स थे हम पे, दोनों कितने डिग्री पे हैं? ये एफ है और ये कितना है? f/2 है। 2 कितने एंगल पर है थीटा? 45 45 डिग्री। देख लो एफ नेट का आंसर क्या आएगा। एफ नेट का आंसर आएगा √f² प्लस f/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू cos 45 डिग्री। ओके, तो देखो क्या आएगा, ये √f, देखो कॉमन ले लो, पूरे में f² कॉमन आ रहा है, तो f बाहर आ गया। देखो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू cos 45 कितना था? 1/√2। √2 क्लियर? तो देखो आंसर कितना सिंपल दिखने लग गया। f इज इक्वल टू दिखा, ये ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5/4 प्लस √2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बाई 4 बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा और अंदर आपको दिखेगा 5 + 4√2। तो देखो आंसर जरूर थोड़ा सा डिफरेंट ऑड दिख रहा है, बट सॉल्व कितना जल्दी हुआ वो बताएं। सर वो पहले यहाँ पे 2 और 2 कट होना चाहिए ना, 2f1 f2 के यहाँ पे। 2f1 f2 कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, और दूसरा फोर्स हाँ, f/2 है ना। हाँ वो ओके ओके f/2 ओके, है ना। सॉरी माय मिस्टेक। ओके, कैलकुलेशन एरर हुआ थोड़ा। ये दूसरा फोर्स f नहीं है, ये f/2 है, तो ये तो 2 कैंसिल हो गया। ओके गुड, ये 1/√2 ही रिमेनिंग होगा। ओके गुड गुड। तो ये सॉल्विंग थोड़ा सा अलग हो गया यार, ये भी अलग हो गया, ये 1/√2 ही रह गया। ओके, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर चाहिए तो एलसीएम ले सकते हैं। हम क्या करें, 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर √2 का, तो ऊपर आ जाएगा √2 और ये √2 क्या बन जाएगा 2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, जिससे ये कैलकुलेशन वाइज मतलब स्ट्रेट दिखने लगे। तो हमने क्या किया, इसमें इस नंबर में साइड में हमने √2 और √2 का मल्टीप्लाई कर लिया। दिया। डन। सो इससे क्या हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर बेस जो है वो रियल हो गया एकदम। सो ये हाँ, वाला वो रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज कर दिया। और अब 4 एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2, क्योंकि 2 तो एलसीएम आ मतलब जाएगा, 5 + 2 √2/4। 2/4 आएगा। ये मैटर नहीं करता, क्या मैटर कर रहा है कि आइडिया आपको कितना फास्ट हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ग्रेविटेशन के केस में। ये समझ आया कि नहीं? अल्टरनेट फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं दो फोर्सेस के यस लिए? सर। ओके, चले तो एक और एग्जांपल दे देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको इसे यूज करना है, थोड़ा जब आप देखेंगे क्वेश्चंस को तो वो डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा कि विदाउट उसके भी काम बनता है या नहीं। और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से। ओके, सो लेट्स से 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट 4 नहीं, अभी 3 रखते हैं ड्यू टू बी एंड सी। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एजेस पे रखे हुए हैं। डन। तो हमें ए पे फोर्स बताना है ड्यू टू बी एंड सी। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ऑल द साइड्स आर सेम। हाँ, ये लेट्स से ये लेंथ L है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सेम मास।
तो इन सब का मास भी क्या है, m है। तो बताना ए पे फोर्स कितना लगेगा। चले कैलकुलेट करें। ओके चले पूछ लेते हैं। ओके अदिति, आप एक्सप्लेन करें कि ए पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। पहले ये मैंने ए ड्रॉ किया, ए पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। अदिति, ओके अंशिका, यस सर। या बताएं ए पर कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे होंगे। बी एंड सी। बी एंड सी। बी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स बी, दिस वन, और सी का डायरेक्शन होगा ये। नाउ यस फोर्स की वैल्यू क्या होगी फॉर बी। अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वैल्यू फॉर्मूला जो यूज करते हैं हम, क्या फॉर्मूला होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फोर्स, कैपिटल जी into m1 into m2 इंटू m1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ पर आर का काम क्या कर रहा है, l एल कर रहा है, एल एल तो एल स्क्वायर। मतलब एल स्क्वायर। हाँ, और इस पे बताए फोर्स ऑन सी, same सॉरी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सेम सेम जी into एम ओवर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। तो सर सेम हम है। m स्क्वायर लिख लेंगे ना। हाँ हम एम स्क्वायर लिख देंगे यार, वो तो पता है, वो मैं जस्ट लिख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग आपका रहे कि बोथ आर द एम। तो अब देखो मैं सर यहाँ लेकिन अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री पैरामीटर्स नहीं लगाएंगे। हाँ जरूरत नहीं है ना, मैंने अभी आपको सिखा दिया ना डायरेक्ट के लिए, मैंने आपको अभी डायरेक्ट सिखा दिया ना कि देखो हाँ। ए पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, और लकीली दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम है। सेम। सेम। तो एफ और एफ है, वेयर एफ मतलब क्या है, वेयर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा ये पॉइंट ए है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है। ये क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए पर फोर्सेस हमें देखने हैं, वेयर एफ जो हमने एज्यूम किया है दैट एफ इज, एफ मींस जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये मीनिंग है किसका, एफ का। अच्छा अब बताओ दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 60 डिग्री। तो 60 डिग्री। हाँ, क्या कंपोनेंट वगैरह कुछ करना है, इतना मेहनत करनी है क्या हमें, नहीं, हम डायरेक्टली लगा देंगे भाई। बताओ नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस F2 f2 स्क्वायर 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 प्लस 2 2 इंटू f1 F f2 cos 2 थीटा 2 इंटू cos cos थीटा। यस। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बताओ F1 F2 दोनों ही क्या एफ है, तो जल्दी से अपन लिख देते हैं, ये भी एफ स्क्वायर है, ये भी एफ स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस 60 डिग्री, थीटा। कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यार ये सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सर ये 2f स्क्वायर होगा, 2f स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2f स्क्वायर इंटू ये कितना होगा कॉस थीटा 1/2। 1/2 कुछ लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसे क्या करते हैं, 2f स्क्वायर कितना हो गया 4f स्क्वायर इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ गया 2f स्क्वायर। ये होगा क्या, ऐसे नहीं। चलेगा क्या कैलकुलेशन, नहीं, नहीं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है यार, ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना कॉमन है। लेके होगा ना, हाँ सर पहले इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे और कॉमन कैंसिल कर लेके और देंगे। डिवाइड कर देंगे। अरे भाई कॉमन नहीं लेना, जरूरत नहीं है, ये पहले मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाँ 2 कैंसिल आउट चला होगा। जाएगा। तो इसे मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ, इसका मतलब ये होगा 2f स्क्वायर होगा प्लस
2f² इंटू 1/2 है, ये 2 पहले सॉल्व होगा, 2 कट होगा, तो क्या आया, रूट ऑफ 2f² प्लस f² हुआ ना, कितना आया ये 3f²। 3f²। f तो बाहर आ जाएगा बट 3 अंदर रहेगा, तो क्या आंसर आएगा, f रूट 3. 3. What is the final force on A? So I'll write net force on A. F root 3. क्या हो जाएगा, f net, it will be f root 3, और f root 3 बस मत लिख के आ जाना, f की वैल्यू हमने क्या देखी थी, gm² by l² into हाँ. root. This is our final force on A. कोई डाउट हुआ इसमें, बताओ, फोर्स ऑन ए, No. सर ये समझ आया? B और C पे इतना ही लगेगा ना? बी और सी पे भी इतना लगेगा, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि सब बिल्कुल सेम दिखेंगे, सब बिल्कुल सेम दिखेंगे, तो इवन मैं बी पे भी पूछूंगा तो इतना ही लगेगा, सी पर भी इतना ही लगेगा, ठीक है, सब 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई डाउट अभी इसमें, बताओ यार, नो सर। फोर्सेस अच्छे No, से sir. समझ आ रहा है ना, हाँ सर। एक और क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है, एक और और क्वेश्चन दे समझ क्या? आया। अच्छा, एक और टफ वाला क्वेश्चन दे, हाँ सर कर लेंगे। कर लोगे पक्का, थोड़ा सा टफ, चलो हाँ. देख लेते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। अभी इस बार स्क्वायर बना देते हैं, तो अभी 4 पार्टिकल आ गए हमारे पास, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, तो ये हो गया हमारा ए बी सी, सर इसमें भी एंगल सेम है। ये स्क्वायर है, देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें, देखिए किसका आंसर करेक्ट है, पहले आप लोग सॉल्व कर लें, फिर मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि आप लोगों में से कौन करेक्ट आंसर है, इतना भी सिंपल नहीं है, देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, सो कैलकुलेट करें। Find force on it, okay? सर अभी भी इसमें अपॉन में l² ही लेंगे। मतलब डिपेंड करेगा जितनी डिस्टेंस होगी, समझ रहे हो, वही तो थॉट है, वही तो इस क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंस है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि प्रीवियस केस में सारे एकदम सेम थे, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे हैं क्या, नहीं. नहीं, बी और डी सेम है और सी डिफरेंट है, तो जिसकी जितनी डिस्टेंस होगी वो वाली यूज करेंगे हम, पैटर्न r² ही रहेगा, जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट है, यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, चले आदित्य आप सॉल्व करते हैं, मिलके सॉल्व करते हैं, देखिए पहले बताएं, अगर मैं ए को हैंडल करूंगा तो कितने फोर्सेस लग रहे होंगे इसमें, 3. 3 फोर्सेस दिख रहे हैं सबको, ये 3 फोर्सेस हाँ. होंगे, यस सर। सबको समझ आया। अच्छा बताओ, क्या मैं रिजल्ट में एक साथ तीनों निकाल सकता हूँ क्या, मैंने 3 का फॉर्मूला बताया क्या, 2 का बताया। नहीं. 2 का बताया। बताएंगे, फिर बाद के 2 के और चेक कर लेंगे, समझ आया, तो बेसिकली इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कौन, यहाँ पे बी लगा रहा है, यहाँ पे सी लगा रहा है, और यहाँ पे और उधर डी. लगा रहा है, नहीं ये बी है, एक्चुअली उल्टा हो गया क्या, हाँ ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका मतलब सर हाँ सर जो B ऑन A और D ऑन A
वो दोनों फोर्स सेम होंगे ना? हाँ वो दोनों फोर्स सेम है, बट हमें 3 का रिजल्ट निकालना है ना, तो हम 3 का नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पर स्मार्टनेस थोड़ा सा यूज करेंगे। हम 2 को अलग रख लेंगे, किसको किसको, एफ बी को और एफ सी को। सी को रिजल्ट निकालेंगे और उसको किसके साथ ऐड कर देंगे, ये जो तीसरा वाला एफ डी को। एफ डी के साथ, तो काम बन जाएगा ना। आप समझ आ रहा है? यस सर। हाँ इसको हम 2 पार्ट पे ऐसे कर सकते हैं। चलो एफ सर डी एफ डी एफ सी होना चाहिए ना वो, हाँ इसके एफ सी मुताबिक यार, शायद बिल्कुल। डायग्राम। हाँ हाँ क्योंकि वो C है FC 45 तो देखो ये कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, एल स्क्वायर। L स्क्वायर जबकि यहाँ पे देखेंगे तो जी एम जो मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर एल L रूट स्क्वायर हाँ 2 होगी यहाँ पर डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये उसका डायगोनल। स्क्वायर समझ आ रहा है? सो इसका जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो कितना होता है, एल रूट 2 L है। रूट 2 तो यहाँ पर हो गया एल रूट 2 का स्क्वायर, और ये जो डी है वो तो सिंपल रहेगा ही, जी एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर सारे फोर्सेस हमने हो गए। तो लेट से अगर हमने एज्यूम किया कि व्हेन वेयर वेयर हम लेट से एफ मान लेते हैं, किसको एफ मान लेते हैं, जी एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर को एफ बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा ना, जी एम स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली ये एफ बाई 2 जैसा दिखने लगेगा। तो अगर मैंने इसे बोला एफ, तो ये भी कितना होगा एफ, बट ये कितना होगा एफ बाई F बाय 2 2। अच्छा अब बताओ यार 90 डिग्री में है तो रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यस, तो सर वो इनका अल्टरनेट फार्मूला ना। हाँ एफ डैश वाला अल्टरनेट में सर cos थीटा का वैल्यू 0 होगा तो जीरो थर्ड होगा। टर्म 0 होगा। तो 0 होगा सर पूरा। 90 डिग्री याद पूरा रखना है, नहीं। सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब आंसर आएगा कितना, एफ रूट 2। कितना आएगा, हाँ F रूट 2 एफ अच्छा रूट 2। ये फोर्स तो आया, ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ दिखेगा इनके बीच में, ऐसे हाँ ऐसे एफ डैश हमारा। अच्छा ये एफ डैश और ये एफ, अब तो ये फाइनल सेम डायरेक्शन में है ना। मेरा आया था। तो इसका मतलब अब अगर मैं देखूं तो ये जो एफ सी और एफ डैश आए हैं ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आए हुए हैं, ये एफ सी है और ये एफ, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, एफ हाँ डैश प्लस एफ सी। तो एफ डैश कितना है, ये आया है एफ रूट 2 जितना, और एफ सी कितना आया है, एफ सी आया है एफ बाई 2 2 जितना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला नेट का देखेंगे तो हो जाएगा एफ इन टू रूट 2 प्लस 1/2, वेयर एफ हमें ऑलरेडी पता है एफ क्या है, जी एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ये हो गया रूट 2 प्लस 1/2। हाँ तो ये समझ आया यार, फोर्सेस सबको आज समझ में आया, फोर्सेस यस हाँ सर। डिस्कशन किया और कई सारे नए नए पैटर्न भी हमने देखने को मिले। सर मेरा वो शायद एफ रूट से 2 आ लास्ट गया में था। मिस्टेक है हाँ सर, शायद से वो लास्ट में मिस्टेक है। हाँ ये 2 है, ठीक है, ओके। हाँ तो ये हमारा सिचुएशन था, ये हमने फोर्सेस पे बहुत सारा सर हमें वो फिर से उधर एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंडेंट होगा ना, ऑप्शन देख के आपको करना है। हाँ अगर ऑप्शन पॉइंट में है तो कर देंगे, ये इसको लिख सकते हैं क्या 1.41 और इसको 0.5, तो टोटल आपको दिख जाएगा 1.91 जितना टाइम्स, हाँ ठीक है। अगर डिनोमिनेटर वगैरह में कुछ है तो वैसे करके एलसीएम लेके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन पे देखेंगे कि कैसा मिल रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा सा सिनेरियो। अच्छा ये बताओ, एक बॉक्स है ये 4 kg का है, ठीक है, और मतलब लेट से, और ये एक कुछ 10 kg का है, इनके बीच में कोई एक ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर मैं इससे कुछ मास इसके पास दे दूं तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स में कोई चेंज आएगा? हाँ आएगा ना, आएगा आएगा आएगा। आएगा पक्का? अगर मैं पक्का। एक ऑब्जेक्ट से मास इस पे ट्रांसफर कर दूंगा हाँ तो 10 का बढ़ेगा ग्रेविटेशन। सिस्टम का मास अभी भी वही है, देखिएगा इससे मैंने एक मास लिया और वो इसको दे दिया, तो क्या इन दोनों के बीच की म्यूचुअल ग्रेविटेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो नहीं सर। अच्छा चलो, जो हाँ बोल रहा है बताएं आदित्य, कैसे पड़ेगा फर्क? नहीं सर, अब समझ में आ गया, अच्छा अब समझ में आ गया। सिर्फ एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। अच्छा बाय द वे फोर्स भी बदल जाएगा, देखना अभी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, 4 × 10 पे,
ठीक है, हाँ। चलो 1 kg हाँ। ट्रांसफर कर देते हैं। ये कितना बचा 3, ये कितना 3 हुआ into 11 3 into 11 सेम नंबर आएगा क्या, नहीं, कम हुआ या ज्यादा हो गया? कम हो गया। ज्यादा। अरे ज्यादा, बहुत सही यार, ये कम 33 कम ज्यादा है क्या 40 से, कम हो गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर हम किसी सिस्टम से किसी सिस्टम पे मास ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स बदल जाता है। ठीक, तो ग्रेविटेशन को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन टाइप मत ले लेना कि मास कंजर्व है। क्वेश्चन कैसे बनाता है, द मास ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो भाई सिस्टम के मास पे नहीं डिपेंड करता है ग्रेविटेशन, तो मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, और मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल चीज है, वो तो बदल जाती है। तो आप समझ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर देखें, हम देखें इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर। देखें इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर मतलब ये m मास का ऑब्जेक्ट था, ये भी m मास का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इनिशियल फोर्स कितना है, लेट्स से डिस्टेंस कुछ r है, सो इनिशियल फोर्स बात करते हैं। gm square upon r square। हाँ, सो इनिशियल फोर्स कुछ f गिवन है, वो होगा में जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ज्यादा इसका R यूज square। नहीं है अभी। व्हेन लेट्स से x% मास इज ट्रांसफर्ड, व्हेन x% mass is transferred, Transfer। ओके। x% की जगह फ्रैक्शन ले लेते हैं, फ्रैक्शन बहुत बेटर रहेगा। फ्रैक्शन आप समझ जाएंगे, सपोज मैंने बोला 25%, मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0. 1/4। हाँ, मतलब 0.25 फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन बनाना नहीं है, यहाँ पर पर्पज है मतलब पॉइंट में लेके आना। ठीक है, सो व्हेन x फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल में लाना है। हाँ, व्हेन x फ्रैक्शन ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड, मतलब पहले था ये m, बट अब m से हमने यहाँ पे x माइनस कर दिया, तो सोचो यार m था और m से मैंने x फ्रैक्शन माइनस किया, तो हम कैसे एज्यूम करते हैं, सपोज m है, मैंने 20% माइनस किया, बताओ कितना बचेगा 80%। 80%। लिखेंगे कैसे उसे पॉइंट में 0.8 m लिखेंगे। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसका मतलब अगर मैं इस तरह एरो बना रहा हूं कि x फ्रैक्शन हमने ऐसा ट्रांसफर किया, x फ्रैक्शन, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ m, और ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स 1 टाइम्स plus ऑफ x। m। एक्स्ट्रा। पक्का समझ आया, ये अगर x फ्रैक्शन हाँ। है तो देख लो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा। सो फाइनल फोर्स देखो, F इज इक्वल टू क्या होगा, G 1 प्लस m, सॉरी 1 प्लस एक्स इंटू एम इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एम। क्लियर है, कोई हाँ, डाउट इसमें? तो इसका मतलब कैसा दिखने लगेगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। हाँ, 1 square minus x। x square देखिए minus b। क्या डिफरेंस होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स रिमेन होगा। समझ आया दोनों में, यस क्लियर, सर। पक्का। सो मैं Yes ये sir। बोल सकता हूँ एफ न्यू, और हाँ ठीक है, न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ओल्ड और इनिशियल, आई मीन। डन, कोई डाउट इसमें? तो चेंज नहीं। कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, हाँ, ये तो read। तो ये बोलो इतना अमाउंट ही डिक्रीज हो रहा है ना, समझ आया। सो परसेंटेज चेंज इन फोर्स कितना हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर होगा फ्रैक्शन में, इंटू 100 करा लेंगे, आ जाएगा परसेंटेज में। समझ आया, एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखें एक एग्जांपल देता हूं तो आप लोग को वैल्यूज वाइज फील हो जाएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, मैं देता हूं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स
sorry, if 20% mass of one object is transferred to another object of same mass, then find the change in gravitational force between them. Okay, find the change in gravitational force between them. समझ आया सबको क्वेश्चन? तो क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं थोड़ा सा फिर से फिगर्स बना देता हूँ जिससे आपको टेंशन नहीं हो। ये m था, ये m था, और लेट्स से इनके बीच में फोर्स था F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये था इनिशियल फोर्स। ओके, अभी हमने 20% चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली 20% अगर चेंज किया तो यहाँ से कन्वर्ट हुआ होगा 0.2, 20% मतलब कितना 0.2, इसका मतलब ये रिमेनिंग कितना होगा 0.8 टाइम्स ऑफ m, और ये कितना हो गया होगा 1.2 टाइम्स ऑफ m। तो देखो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू जी 0.8 इंटू 1.2 इंटू एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखो कितना मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 0.96 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देख रहे हो कितना हो गया 96 रिमेन, तो कितना कम हो गया परसेंटेज चेंज 0. ये 1 माइनस 0.96 करेंगे ना, 0.4 कितना आया 0.04 0.04 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट चेंज आया 4%. 4%। यही चीज हम डायरेक्ट कर सकते थे, इतना पूरा लिखते नहीं, और हमें पता था 20% मतलब 2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर मतलब कितना 0.04, 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा 0.96। ओके, तो न्यू फोर्स कितना हो Yes, sir. जाएगा 96 टाइम्स, और अगर सिर्फ चेंज चाहिए तो चेंज कितना हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर टाइम्स, मतलब 0.04 इंटू 100, कितना 4% का ड्रॉप आएगा। समझ आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. तो ये हुआ कि मासेस से क्या फर्क पड़ सकता है। अब मासेस को डबल ट्रिपल कुछ कर देंगे, पास में लेके आ जाएंगे, तो वो सब तो आप बेसिक कर लेंगे। तो एक एग्जांपल और फाइनल देके क्लोज करते हैं आज का सेशन। एक और एग्जांपल। सर एक डाउट है आप पूछिए। सर, जो स्पेरिकल बॉडीज होती है ना, तो उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब सेंटर क्लोजेस्ट रेडियस से या सेंटर से? सेंटर से आप हर बार फिगर में देखो, नोटिस करो, मैं एरो थोड़ा सा यहाँ तक ही बनाता हूँ, सेंटर से कंसिडर करते हैं किसी भी फिगर में, देख रहे हो? हाँ. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ये वाला आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, ये वाला आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर रेशम मतलब, हाँ रेशो।
सो क्वेश्चन आई गेस सबको समझ आ गया होगा। दो मासेस हैं, लेट्स से m और m के हैं, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो फोर्सेस कितना हो जाएगा, gm स्क्वायर बाई R square. अभी बाद में क्या हुआ, दोनों फोर्सेस सॉरी दोनों मासेस क्या कर दिए हमने, डबल डबल कर दिए। डबल बीच के सेपरेशन को कितना कर दिया, हाफ कर दे। हाफ कर दिया, मतलब ये r R by बाई 2 कर दिया। तो बताओ नया फोर्स कितना हो जाएगा, g इंटू 2m इंटू 2m। हाँ, मतलब वो 4m 4m स्क्वायर square. अपॉन R square by 4। r स्क्वायर r बाई 2 का स्क्वायर, सो हो जाएगा gm इंटू 4m स्क्वायर, और ये r बाई 4 आएगा ना, तो ये 4 कहाँ जाएगा, 4 चला जाएगा। चला जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा, ये 4 टॉप पे मल्टीप्लाई जाएगा, होगा। हाँ, ठीक है। सो gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर होगा। सो इसका मतलब न्यू फोर्स विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ द ओल्ड। ओके, Yes. ये कुछ तो ये बड़े सिंपल बेसिक से पैटर्न थे, तो इस पे चीजें पूछ सकते हैं। तो फोर्सेस के बारे में आज काफी सारी चीजें समझ आई। एक्सेलरेशन का भी एक क्वेश्चन करवा दिया था, तो एक्सेलरेशन भी ओके होना चाहिए, और मास ट्रांसफर भी हमने कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉरी, हाँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो 9 हाँ उसका डिस्कशन करेंगे। 9.8 कैसे आता है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, वो सारा कुछ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हाँ। यस सर। ओके या बाय बाय एवरीवन, बाय सर, Bye, थैंक sir. यू सर। बाय बाय सर। बाय।